So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why manufacturing had lagged in India. Second issue is ISRO's LVM-3 rocket launches the largest commercial communication satellite. Third issue is related to dowry system in India. And fourth issue is what is the Bureau of Port Security and its role. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss India's manufacturing sector, why manufacturing has lagged in India. India has lagged behind certain non-Western countries such as China and South Korea, despite starting from roughly equivalent position early in the 20th century. इंडिया का इकोनॉमी चाइना एंड साउथ कोरिया के कंपेयर में काफ़ी बिहाइंड है, जबकि इन सभी कंट्रीज ने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट पोजीशन से अपने आप को स्टार्ट किया था. द की रीजन इज द रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसका की रीजन है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस रहा है. While China and South Korea have seen significant increase in manufacturing, the share of manufacturing in India's GDP has remained relatively constant over the time. चाइना एंड साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जबकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में जो रोल रहा है वो कांस्टेंट रहा है. करंट स्टेटस ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. करंट में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या स्टेटस है. कंट्रीब्यूशन. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर नियरली 17% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉय ओवर 27 मिलियन वर्कर्स. प्रेजेंट में इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का 17% का रोल है एंड 27 मिलियन वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एम्प्लॉयड किया हुआ है. टारगेट. The government aims to increase this share to 25% by 2030 under the Make in India and Atmanirbhar Bharat framework. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं. इन सभी प्रोग्राम के थ्रू इंडिया ने 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रोल को जीडीपी में 25% तक इंक्रीज करने का टारगेट रखा हुआ है. Recent growth. In financial year 2024-25, the sector saw a robust growth of 4.26%. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रोबस्ट ग्रोथ हुआ है, अबाउट 4.26% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है. एक्सपोर्ट. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिड्यूस्ड reached USD dollar 184.13 billion in April August 2025, a 2.52% year on year increase. FDI inflow. Manufacturing FDI accelerated by 18%, US dollar 19.04 billion in financial year 2024-25, with Maharashtra leading with 39% of equity inflow. की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ड्राइव करने वाले की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है. नंबर वन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन launched in the Union Budget 2025-26. It integrated a policy across ministries to prioritize sustainable manufacturing like electric vehicle batteries, solar modules and green hydrogen. इस ईयर के बजट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया सो दैट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर प्रायोरिटाइज गिवन किया सके. नंबर ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI scheme covering 14 key sectors. It provides financial incentives for incremental production, particularly transforming mobile and electronic manufacturing. Digital transformation. Approximately 65% of manufacturers had adopted AI by 2025, with more than one two-thirds expected to embrace digital transformation by 25. Infrastructure Gati Shakti. Focus on a multi-modal connectivity to reduce logistic costs, which were estimated at 7.97% of GDP in late 2025, down from 14 to 18% in previous year. Major challenges before manufacturing sector in India. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं. स्किल मिसमैच. ओनली 48.7% ऑफ द वर्कफोर्स वाज कंसीडर्ड एम्प्लॉयबल इन 2023. 2023 के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में ओनली 48.7% वर्क फोर्स ही एम्प्लॉयबल है. रेगुलेटरी बॉटलनेक.
Manufacturing MSMEs face over 1,450 regulatory obligations annually, with a compliance cost ranging from rupees 13 lakh to 17 lakh per year. Regional imbalance. Five states such as Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, and UP account for 54% of manufacturing GVA. Trade barriers. New 50% tariff imposed by the US on many Indian goods in August 2025 put roughly USD 87 billion of export at risk. Research and development underinvestment. India's research and development expenditure remains low at 0.7% of GDP, far below China, which has 2.4%, and South Korea 4.8%. इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर 0.4% ऑफ जीडीपी रहा है, जो कि चाइना और साउथ कोरिया के कंपेयर में काफ़ी लो है। चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का 2.4% एक्सपेंड किया जाता है, साउथ कोरिया के अंदर 4.8% एक्सपेंड किया जाता है। फ्यूचर रोड मैप विकसित भारत 2047 2030 विजन टारगेट और रीच $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट एंड 25% ऑफ जीडीपी शेयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। 2030 के लिए विजन रखा हुआ है इंडिया ने कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में 25% तक रोल इंक्रीज करना है। 2047 विजन aims for manufacturing to contribute 27% of GVA by 2047-48 to transform India into a developed country. Advanced manufacturing. Niti Aayog's roadmap envisions India as a top 3 global manufacturing hub by 2035 through advanced manufacturing leadership. In this session, we will discuss about LV-M3 M6 mission or Bluebird mission. Why in use? On December 24, 2025, the Indian Space Research Organization successfully launched the LV-M3 M6 mission from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikoda. 24 दिसंबर 2025 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने LV-M3 M6 मिशन को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया है। द मिशन प्लेस द ब्लू बर्ड ब्लॉक टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। इस मिशन ने ब्लू बर्ड ब्लॉक टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। Key facts about LV-M3 M6 mission. Launch vehicle LV-M3 M6. LV-M3 means Launch Vehicle Mark III. ISRO's heaviest operational rocket nicknamed बाहुबली। LV-M3 इसरो का हैवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट है जिसको बाहुबली नेम गिवन किया गया है। सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक टू 6100 kg communication satellite built by the US based firm AST Space Mobile। ब्लू बर्ड ब्लॉक टू इसमें सैटेलाइट का नाम है। अबाउट 6100 kg इसका वेट है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि यूएस बेस्ड फर्म AST स्पेस मोबाइल के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। कॉमर्शियल पार्टनर द मिशन वॉज अ डेडिकेटेड कॉमर्शियल फ्लाइट मैनेज्ड बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। Records said heaviest payload. It is the heaviest satellite ever launched by an Indian rocket from Indian soil. इंडियन सॉइल से इंडियन रॉकेट के द्वारा पेलोड किए जाने वाला ये हैवीएस्ट सैटेलाइट है, लार्जेस्ट LEO commercial satellite. It features a massive 223 square meter phase array antenna, the largest ever deployed on a commercial satellite in LEO orbit, successfully injected into a circular orbit at an altitude of approximately 520 km with an inclination of 53 degrees. Technological and strategic significance. ब्लू बर्ड सैटेलाइट का टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी. The satellite is designed to provide 4G and 5G broadband direct to standard mobile smartphone without requiring specialized ground hardware or antennas. 4G एंड 5G ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। स्पेशली ग्राउंड पर हार्डवेयर और एंटीना का हमें 4G 5G के लिए यूज करना पड़ता है। इस सैटेलाइट के इंस्टॉल होने के बाद एंटीना या फिर हार्डवेयर का कोई नीड नहीं होगा। ग्लोबल कवरेज इट एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय ऑफरिंग वॉइस, वीडियो एंड डाटा सर्विसेज इन रिमोट, रूरल और डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज वर्ल्ड वाइड।
Indo-US cooperation. The launch underscore a growing space partnership between India and the US in the commercial space market. कॉमर्शियल स्पेस मार्केट में इंडिया और यूएस के बिटवीन ये मिशन ग्रोइंग स्पेस पार्टनरशिप को शो कर रहा है। LV-M3 reliability. This was the sixth operational flight of LV-M3 and it's a third dedicated commercial mission, maintaining 100% success rate. Quick reference for UPSC prelims. Launch date December 24, 2025. Payload weight 6,100 kg. Satellite type low Earth orbit communication. Mission milestone first back-to-back LV-M3 mission within 52 days. In this session, we will discuss a dowry system in India. What are dowry-related laws in India? Why in use? Supreme Court term dowry a cross-cultural evil. Recently, Supreme Court ने dowry system को एक cross-cultural evil कहा है. It also said married daughter to higher status family has come to a great cost to the rights of women. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉटर का हर स्टेटस फैमिली में अगर मैरी किया जाता है यानी वुमेन के राइट की एक ग्रेट कॉस्ट पर किया जाता है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 sought to prohibit the practice, but dowry has persisted in the society. डॉरी सिस्टम को प्रोहिबिट करने के लिए इंडिया में 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, बट सोसाइटी के अंदर डॉरी सिस्टम अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। What are Supreme Court directives to the government related to dowry system? The court directed the state and the union government to consider changes to educational curricula across levels. सुप्रीम कोर्ट ने और स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट से कहा है कि वो ऑल लेवल पर एजुकेशनल करिकुलम में कुछ स्पेशल चेंजेस करें। reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another. Order the prompt appointment of a dowry prohibition officer in the state and public access to their details. सुप्रीम कोर्ट ने और स्टेट के लिए डायरेक्ट किया है कि सभी स्टेट के अंदर डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का प्रॉम्प्ट अपॉइंटमेंट किया जाए। Said police officers and judicial officers dealing with dowry cases must undergo periodic training and sensitization. पुलिस ऑफिसर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स जो कि डॉरी केसेस को डील करते हैं इन सभी का पीरियोडिक ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग डॉरी केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है डॉरी से रिलेटेड पेंडिंग केसेस को एक्सपीडियस तरीके से डिस्पोजल किया जाए। What is definition of dowry and what are various conceptual understanding of dowry? Dowry defined under Section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961. डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 के अंदर डॉरी को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन? Any property or valuable security given or agreed to be given directly or indirectly by one party of a marriage or the other, or by parent, guardian at or before or any time after the marriage in connection with it. डॉरी का जो डेफिनेशन है थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन हो सकती है, बट इस पूरे डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि अगर मैरिज के टाइम पर कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन किया जाता है या फिर गिवन करने का कोई एग्रीमेंट दिया जाता है गार्जियन के द्वारा, जो गर्ल्स के गार्जियन है पेरेंट हैं उनके द्वारा, अगर बॉयज के पेरेंट के लिए कुछ डॉरी या फिर कोई वैल्यूएबल गिफ्ट गिवन करने का एग्रीमेंट किया जाता है या गिवन किया जाता है, इस टाइप का जो एक्ट है ये डॉरी के अंदर काउंट किया जाता है। स्त्रीधन वर्सेस डॉरी। स्त्रीधन रेफर टू वॉलंटरी गिफ्ट गिवन टू द वुमन एट द टाइम ऑफ मैरिज, वेयर एज अ डॉरी इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ डिमांड और कोर्जन। यहाँ पर स्त्रीधन एंड डॉरी के बिटवीन जो डिफरेंस है वो यहाँ पर शो किया गया है। स्त्रीधन कोई भी वॉलंटरी गिफ्ट जो कि मैरिज के टाइम पर वुमेन को दिया जाता है वो स्त्रीधन होता है। डॉरी जो होता है वो क्वेश्चन या फिर डिमांड अगर की जाती है किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, देन उसको डॉरी के अंडर काउंट किया जाता है।
की स्टेटिस्टिक्स एंड डाटा रिलेटेड टू डॉरी। डॉरी से रिलेटेड क्या डाटा है? प्रिवेलेंस अप्रोक्सीमेटली 7,000 डॉरी डेथ आर रिपोर्टेड एनुअली इन इंडिया। इंडिया में एनुअली 7,000 डॉरी डेथ रिपोर्ट किए जाते हैं एनुअली। इट मीन्स पर आवर वन वुमेन का डॉरी की वजह से डेथ होता है। रीजनल कंसंट्रेशन 80% ऑफ केसेस आर कंसंट्रेटेड इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, एमपी एंड वेस्ट बंगाल। ओवरऑल डॉरी से रिलेटेड जितने भी केस हैं इंडिया के अंदर, उनका 80% ओनली इंडिया के 4 स्टेट सच एज यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल के अंडर शो हो रहे हैं। लीगल inefficiency. The conviction rate for dowry-related offenses remain critically low, often below 2% due to underreporting, slow investigation, and witness turning hostile. डॉरी से रिलेटेड केसेस में अ, जो कॉन्विक्शन रेट है वो काफ़ी लो है, अबाउट 2% ही है। और ये लो कॉन्विक्शन रेट के कई सारे रीजन हो सकते हैं: अंडर रिपोर्टिंग, स्लो इन्वेस्टिगेशन एंड विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल। करंट लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू डॉरी। डॉरी से रिलेटेड इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क क्या है? विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज इन 2024-25, several IPC sections have been replaced. भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 80 फॉर्मरली IPC 304B डिफाइन डॉरी डेथ। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 80 के अंदर डॉरी डेथ को डिफाइन किया गया है। प्रीवियसली आईपीसी 304 बी के अंडर इसको डिफाइन किया गया था। डेथ caused by burns or bodily injury within 7 years of marriage under suspicious circumstances where the woman was subject to cruelty, harassment for dowry soon before death is punishable by 7 years to the life imprisonment. मैरिज का 7 इयर्स तक, मैरिज के बाद 7 इयर्स तक अगर किसी भी गर्ल को बर्न किया जाता है डॉरी के लिए या बॉडीली इंजरी किया जाता है, देन इस तरह के एक्ट को डॉरी डेथ में काउंट किया जाता है। और 7 इयर्स तक पनिशमेंट गिवन किया जा सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर मिनिमम 7 इयर्स का पनिशमेंट है एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी ये एक्सटेंड हो सकता है। BNS सेक्शन 85 फॉर्मली IPC 498A penalize cruelty by the husband or his relatives. BNS सेक्शन 85 के अंडर हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा अगर क्रुएल्टी किए जाता है दुल्हन के साथ, देन उसको पेनलाइज किया जाता है। इट मीन्स पहले आईपीसी 498A के थ्रू इसको पेनलाइज किया जाता था, बट अब BNS सेक्शन 85 के अंडर पेनलाइज किया जाता है। क्रुएल्टी इंक्लूड्स विलफुल कंडक्ट ड्राइविंग अ वुमन टू सुसाइड और हरासमेंट फॉर अनलॉफुल प्रॉपर्टी डिमांड। क्रुएल्टी के अंडर किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है? कोई भी ऐसा कंडक्ट जो वुमेन को सुसाइड करने के लिए या फिर हरासमेंट किया जाता है उसके थ्रू, अनलॉफुल प्रॉपर्टी डिमांड के लिए अगर उसको हरासमेंट किया जाता है और वो सुसाइड करती है, देन ये क्रुएल्टी के अंदर काउंट किया जाता है। इसको BNS सेक्शन 85 के अंडर प्रोविजन किया गया है। Dowry prohibition at 1961 penalized giving, taking, or demanding a dowry with a minimum of 5 years imprisonment and a fine of rupees 50,000 or the value of the dowry. Dowry prohibition at 1961 के अंडर डॉरी गिविंग करना, टेकिंग करना, डिमांड करना सभी को पैनलाइज किया है एंड मिनिमम 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। 15,000 का फाइन यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 113B presume a person caused a dowry death if harassment is proven soon before the death. Socio-economic factors of dowry and its impact.
डॉरी के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या-क्या हैं और इन सभी फैक्टर्स के क्या इम्पैक्ट हैं? पैट्रियार्की, बीइंग वुमेन एज़ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ और पराया धन। सोसाइटी में वुमेन को फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर पराया धन के तौर पर देखा जाता है। हाइपरगमी, फैमिली यूज डॉरीज टू सिक्योर ग्रूम्स ऑफ हायर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। Materialism, encouraging consumerism, has transformed traditional gift into demand for luxury items such as car and electronics. Consequences led to female feudicides, child marriage, and cycles of debt for the bride's family. सोसाइटी के अंदर जिस तरह से डॉरी सिस्टम प्रिवेल है, इसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड्स इंक्रीज हो रहे हैं, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड ब्राइड्स की फैमिली डेप्ट ट्रैप में फंसती चली जा रही है। इम्पोर्टेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस रिलेटेड टू डॉरी। डॉरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस क्या रहे हैं? सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 clarified that dowry includes any property given at any time before, during or after in connection with the marriage। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मैरिज के बिफोर या मैरिज के ड्यूरिंग या मैरिज का आफ्टर अगर इस तरह से गिवन की जाती है, और इस प्रॉपर्टी का कनेक्शन मैरिज से अगर होता है तो इसको डॉरी में ही काउंट किया जाएगा। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 aimed at preventing the misuse of Section 498A, directing police not to make automatic arrest without preliminary inquiry। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पुलिस को डायरेक्शन गिवन किया कि डॉरी से रिलेटेड केसेस में स्पेशली 498A सेक्शन का मिसयूज हो रहा है, और इस तरह के केसेस में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं किए जाने चाहिए। उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना होगा। राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 defined soon before death as having a proximate and live link between harassment and death। हरासमेंट और डेथ के बिटवीन प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक क्या है, इसको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की गई है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? सोशल रिफॉर्म, मोबिलाइजिंग यूथ एंड कम्युनिटी लीडर्स टू ट्रीट dowry as a social stigma। Economic empowerment, encouraging female labor force participation to reduce financial dependency, legal strengthening, utilizing tech platform for anonymous reporting and stabilizing fast track code for disposal of cases। Recently, Union government constituted a Bureau of Port Security। In this session, we will discuss significance of Bureau of Port Security. Why and use? The government has constituted the Bureau of Port Security as a statutory body under Section 13 of the newly established Merchant Shipping Act 2025। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी होगा। इट विल फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर फंक्शन करेगा। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शंस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज। शिप की सिक्योरिटी एंड पोर्ट फैसिलिटीज से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे, उन सभी फंक्शंस का रेगुलेटरी ओवरसाइट करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। वाई वॉज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी क्रिएटेड? ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को क्रिएट करने का नीड क्यों हुआ? करंटली कोस्टल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल एजेंसीज सच एज कोस्टल गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट मैरीटाइम पुलिस एंड द नेवी। Currently, coastal security responsibilities मल्टीपल एजेंसीज के बिटवीन शेयर की गई हैं, सच एज कोस्ट गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट मैरीटाइम पुलिस, नेवी। इन सभी के पास कोस्टल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दिस लीड टू चैलेंजेस इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑल्सो लीड टू पॉसिबल सिक्योरिटी गैप। मल्टीपल एजेंसीज के पास कोस्टल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये इन सभी एजेंसीज के बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन के बिफोर एक चैलेंज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गैप काफ़ी
इंक्रीज हुआ है। द BOPS will be a single statutory body to regulatory oversight and coordination। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो होगा, ये एक सिंगल स्टेचुटरी बॉडी है जो कि ओवरसाइट को रेगुलेट करेगा, कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करेगा। व्हाट विल द फंक्शन ऑफ अ BOPS, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के मेन फंक्शंस क्या क्या होंगे? द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी विल एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न सच एज मैरीटाइम टेररिज्म, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, drug trafficking, human trafficking, and other illicit trafficking, poaching, illegal migration via waterways, piracy, and cyber security threat। What is India's maritime growth so far? इंडिया में मैरीटाइम ने किस तरह से ग्रोथ किया है? According to the Ministry of Shipping, Port and Waterways, the last decade has been transformed in the term of maritime surge। मैरीटाइम सर्ज लास्ट डिकेड में काफी शो हुआ है, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस टेकिंग किए गए हैं। कार्गो ग्रोथ increased from 974 million ton in 2014 to 1594 million ton in 2025। कार्गो ग्रोथ 2014 से लेकर 2025 में काफी शो हुआ है। 2014 में जहां 974 मिलियन टन कार्गो का स्टेटस था, वहीं 2025 में 1594 MMT तक ये इंक्रीज हुआ है। Port capacity has expanded by 57%, enhancing efficiency and volume। पोर्ट कैपेसिटी 57% तक एक्सपेंड हुआ है, जिसकी वजह से पोर्ट की एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम इनहांस हुआ है। शिप टर्न आउट टाइम हैज रिड्यूस्ड बाय हाफ टू 48 आवर्स, अलाइनिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। से टर्न अराउंड टाइम वो भी हाफ तक रिड्यूस हुआ है, अबाउट 48 आवर्स तक ये आ चुका है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ इसने अब अपने आप को अलाइन किया है। कोस्टल शिपिंग वॉल्यूम्स रोज 118%, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक कनेक्टिविटी। Nine Indian ports included in the World Bank's Container Port Performance Index, signaling a rising international recognition। In 2021, India launched its strategy for maritime and vision 2030 to ensure a safe, sustainable and secure maritime future। 2021 में इंडिया ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी, जिसके अंडर सेफ, सस्टेनेबल एंड सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर को इंश्योर करने का टारगेट रखा गया। द BOPS हैज बीन डिफाइंड इन द लाइन विद दिस विजन। हाउ हैव पोर्ट लॉ बीन मॉडर्नाइज, इंडिया में पोर्ट लॉज को किस तरह से मॉडर्नाइज किया गया? देयर वाज अ नीड फॉर रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सिक्योरिटी मेजर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल एनवायरनमेंट फॉर ईज ऑफ बिजनेस। इंडिया में पोर्ट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने एंड रिवाइवल करने की एक नीड थी, सिक्योरिटी मेजर्स को डिफाइन करने की नीड थी, एंड ईज ऑफ बिजनेस के लिए यहाँ पर कोस्टल एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने की नीड थी। दिस लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेंचुरी ओल्ड इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ 1908 with the Indian Port Act of 2025, along with additional legislations like the Coastal Shipping Act 2025, Modernized Merchant Shipping Legislation 2025, and the Bureau of Port Security 2025। इंडिया में सेंचुरी ओल्ड इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ 2025 के साथ यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। इसके साथ ही कुछ एडिशनल लेजिस्लेशन सच एज कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, मॉडर्नाइज्ड मर्चेंट शिपिंग लेजिस्लेशन 2025 एंड द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी 2025 लॉन्च किए गए हैं। एम ऑफ न्यू लॉ जो मैरीटाइम से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनका मेन एम क्या है? टू मॉडर्नाइज द फ्रेमवर्क फॉर द कोस्टल ट्रेड, एनकरेज इंडियन ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ वेसल्स, सिंपलीफाई लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी प्रोसेस, एंड promote cost efficient and eco-friendly sea transport। So thanks for watching this video।